Very good morning to all my dear students. Let's go with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic, and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the YouTube, Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that you overlook to the full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights and the videos will be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. Okay, guys, so now we'll start with the next topic. The last session we have done with the post leadership strategy, and now we'll move to the next one, that is business level strategy. It is part of business level strategy. We have done with the cost leadership, and now we'll move to the next one, that is differentiation strategy. These are the main 5 strategies. We have done with the cost leadership. Now we'll move to the next one, that is differentiation strategy. Okay, so differentiation strategy, you can join through mobile. So differentiation strategy is precisely focused on the differentiation of the product. How much your product is differentiated from those of your competitors. आपके मार्केट में जो competitors है उनसे आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से डिफरेंशिएट हो रही है. Now your customers must feel that whatever the product is available in the market by you is little bit different. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो है वो वहां पे होगी तो लोग उसको वेलकम करेंगे, लोग उसको परचेस करेंगे, एंड लेटर ऑन द कंपनी विल ग्रो फर्दर. मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट योर कस्टमर मस्ट फील दैट द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड. अगर आपके कस्टमर्स फील करेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएटेड है, तभी आप उसको डिफरेंशिएटेड बोल सकते हैं. If your customers feel that the product is not differentiated, the product is standardized, then it's of no use to have differentiation strategy. Now, अगर आपकी product जो है वो differentiated है, then people will be ready to spend high. वहाँ पे लोग ज्यादा खर्चा भी करेंगे अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है. तो अगर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है, पीपल आर नॉट गोइंग टू स्पेंड मच. जैसे कि एक एविएशन सेक्टर की मैं आपको बात बताऊं, अगर आप फ्लाइट में कहीं पे जा रहे हो, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक है इकोनॉमी क्लास और दूसरा है बिजनेस क्लास. तो अगर इकोनॉमी क्लास जो है दैट इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, बट बिफोर कोविड पीपल यूज्ड टू गो विद द इकोनॉमी क्लास. आफ्टर कोविड पीपल आर गिविंग मोर फोकसेस ऑन बिजनेस क्लास, क्योंकि वहां पे सर्विसेज में काफी डिफरेंस है.
इन बिजनेस क्लास दे विल मेक यू फील प्रेशियस, वो आपको एक अच्छा फील करवाते हैं, आपको अच्छी सर्विसेज देते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू आर रेडी टू स्पेंड हाई, आप वहां पे ज्यादा खर्चा जो है वो कर रहे हो बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दैट. देन द प्रोडक्ट और सर्विसेज इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड and customers value differentiated product more than low cost. कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर जो है वो हर बार लो कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखता, कई बार उसकी प्रोडक्ट कैसी है, उसके एट्रीब्यूट्स कैसे, उसके फीचर्स कैसे. आई थिंक वी हैव डन दिस. यस वी हैव डन. मैंने आपको एग्जांपल दिया था JLR का, जगुआर लैंड रोवर. वी हैव डन दिस. The next point is unique product features and unique product performance. यहाँ पे एक बंदा बैठा था. यस ये रहा. कल यहाँ पे बैठे थे, बाहर जाके कर लो. Okay, so now we need to start with the third one. Now the third one, third and fourth, focus strategy. जहां पे पहले जो दो स्ट्रेटेजी हमने देखी वो थी कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन, जहां पे ब्रॉड मार्केट को टारगेट किया जाता है. नाउ जो स्ट्रेटेजी हम देखने जा रहे हैं, कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस, वो नैरो मार्केट को टारगेट करते हैं. वहां पे मास को टारगेट नहीं कर रहे, नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हैं. एंड a focus strategy must exploit a narrow target differences from the balance of the industry by particular buyer group. एक particular buyer group आप identify कर लीजिए and accordingly वो buyer group के need, wants, demands, desire क्या है वो check out कीजिए and अपनी product and services जो है वहाँ पे offer कीजिए. जैसे कि Zoom कार, आज ओला है, उबेर है, उन लोगों ने ऑलमोस्ट जो भी कार रेंटल सर्विसेज की डिमांड होती है उनको सेटिस्फाइड किया, बट उसमें भी एक पॉइंट रह गया था. जैसे कि आज मेरे को अगर मर्सिडीज रेंट पे चाहिए तो नहीं दे रहे, ओला एंड उबेर जो है वो नहीं दे रहे. तो जूम कार वालों ने क्या किया कि अगर आपको मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, BMW चाहिए, आपको रेंट पे मिलेगी एंड पर आवर बेसिस आपको रेंट पे मिलेगी एंड वहां पे आपको खुद ही उसे ड्राइव करना. नो शोफर, नो ड्राइवर, आप खुद ही उसे ड्राइव करोगे एंड जितना घंटा आप उसको ड्राइव करोगे उसी हिसाब से आपको उसका पेमेंट करना है. एंड दैट्स एक्चुअली रियली वेरी गुड. तो वहां पे उन लोगों ने एक ऐसे ग्रुप को टारगेट किया जिसको ऐसी प्रीमियम लग्जरी कार्स जो है वो रेंट पे चाहिए थी. एंड नाउअडेज आप देखोगे जूम कार का थोड़ा सर्च करोगे तो आपको काफी सारी चीजें जो है उसमें देखने को मिल सकते हैं. दे आर डूइंग गुड नाउअडेज. सो एक पर्टिकुलर बायर ग्रुप को आप आइडेंटिफाई कीजिए पूरी इंडस्ट्री में से, और उसी बायर ग्रुप की जो भी नीड, वांट्स एंड डिमांड्स है आप उसको सेटिस्फाइड कीजिए. सेम टाइम आपकी प्रोडक्ट लाइन जो है या तो प्रोडक्ट लेंथ जो है, सर्विसेज जो है वो समहाउ यूनिक होनी चाहिए. जैसे कि जूम कार वाले सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसी अगर कोई यूनिक सर्विसेज आप वहां पे प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी ऑन टॉप. एंड एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल मार्केट भी वो लोग टारगेट करते हैं. जैसे कि जूम कार वाले जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र को ही टारगेट करते हैं. नाउअडेज लेटर ऑन अगर एक्सपेंशन होगा तो गुजरात में भी आएंगे, केरला में भी जाएंगे एंड बाकी की सारी जगह में भी वो जा सकते हैं. दूसरा एग्जांपल एक साई सर्विस सेंटर करके, आप लोगों को शायद मालूम होगा, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, साई सर्विस करके जो 4 व्हील की सर्विसेज वो सब प्रोवाइड करती है. तो उसके कई सर्विस फोर्स आपको मालूम होगा, सर्विस फोर्स जो 2 व्हीलर की सर्विसेज और वो सब करते हैं, एक ऐसी कंपनी सर्विस फोर्स है. दूसरा है साई सर्विस है. ऐसे कई सारी अलग अलग कंपनीज है, बट ये दो जो है वो आज मार्केट में लीड कर रहे हैं. दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. सो अगर आपके पास कुछ अलग है, आप उसको एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक मार्केट में टारगेट कर रहे हो विद अ लिमिटेड बायर्स, यू कैन से टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ cost focus strategy और differentiation focus strategy. Now यहाँ पे भी again cost leadership होगी and differentiation होगा, but एक particular buyers को, एक particular group को ध्यान में रखते हुए. Here the main difference is that पहली दो स्ट्रेटेजी में जो है वो ब्रॉड मार्केट को टारगेट करते थे. अब ये जो दो स्ट्रेटेजी है उसमें स्मॉल मार्केट को या तो पर्टिकुलर बायर ग्रुप को टारगेट करते हैं.
नाउ अब इसके कुछ इश्यूज है, जैसे कि लार्ज फर्म में ओवरलुक स्मॉल निश। एक एडवांटेज भी है, आज कोई भी बड़ी कंपनी है तो वो मास को टारगेट करेगी, क्योंकि उसको बल्क प्रोडक्शन में जाना है, मास प्रोडक्शन में जाना है, बड़े पैमाने पे माल को डंप करना है मार्केट में, तो उसको डेफिनेटली मास को ही टारगेट करना पड़ेगा। अब वो मास में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसमें टारगेट नहीं हो रहे, तो ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हो, उसकी जो भी नीड वांट्स एंड डिमांड्स है आप उसे सेटिस्फाइड कर सकते हो विथ योर यूनिक प्रोडक्ट और यूनिक सर्विसेज। देन फर्म में लेक रिसोर्सेज टू कम्पीट इन द ब्रॉडर मार्केट। अब आपकी फर्म जो है वो बढ़िया है, आपके पास प्रोडक्ट भी बढ़िया है, बट आपकी फर्म के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, इतना एक्स फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से आप एक बड़े मार्केट में बीट कर सको किसी को भी, या तो आप बड़े मार्केट में एंट्री ले सको, ब्रॉडर मार्केट को आप एंटरटेन कर सको, उतना बड़ा कैपेसिटी आपका नहीं, तो आप क्या करोगे, आप एक छोटे मार्केट को बढ़िया तरीके से सेटिस्फाइड करोगे, जैसा कि बालाजी वाला ने किया था। बालाजी वेफर्स जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने सिर्फ राजकोट को टारगेट किया, लेटर और उसकी कैपेबिलिटीज जो है, रिसोर्सेज जो है वो बढ़ते गए, देन सौराष्ट्र को टारगेट किया, देन गुजरात को टारगेट किया, अब पूरे इंडिया को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ अकॉर्डिंगली इट वर्क्स, कि जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो अपना क्राइटेरिया एंड रीजनल जो है जियोग्राफिकल कवरेज जो है वो बढ़ाते जाएंगे। Then may be able to serve a narrow market segment more effectively. आज मैं जो लिमिटेड नंबर्स है उसको काफी अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड कर रहा हूँ, उसकी जो भी नीड वांट्स एंड डिमांड्स है उसको बेटर वे में सेटिस्फाइड कर रहा हूँ इन कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट। अगर मैं बड़े मार्केट में जाऊंगा वहां पे कई सारे कस्टमर्स होंगे, सेम टाइम कस्टमर्स की कंप्लेंट्स भी इतनी आएगी एंड आई मे बी फेल, जैसे कि askme.com, ये एक स्टार्टअप था जो फेल हो गया। इनिशियली काफी बढ़िया चला था, उसके जो भी कस्टमर्स थे, जो भी क्लाइंट्स थे, बढ़िया तरीके से उसको सेटिस्फाइड किया, बट जब उन लोगों ने एक्सपांशन किया एट दैट टाइम दे फेल, दे विल फेल लाइक एनीथिंग एंड आज मार्केट में से किक आउट हो गए। दूसरा एग्जांपल है way2sms.com, ये भी एक ऐसी बढ़िया वेबसाइट थी, एक बढ़िया कंपनी थी जो ऑनलाइन सॉल्यूशंस जो है मैसेजेस को प्रोवाइड करती थी, बट आज ये कंपनी स्टार्टअप जो है वो मार्केट में नहीं है। सो अगर नैरो कस्टमर्स है तो आप वहां पे बढ़िया सर्व कर सकते हो, अगर कस्टमर्स बढ़ जाएंगे पूरे बड़े मार्केट को आप टारगेट करोगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप वहां पे फेल हो जाओ। आज भी बीके मोदी जो कॉलेज है वो एमबीए में सिर्फ 60 सीट्स ही रखते हैं, तो जितने कम कस्टमर्स होंगे उतना बढ़िया आप वहां पे सर्व कर सकोगे। एग्जांपल फॉर दिस, देन फोकस में अलाउ द फर्म टू डायरेक्ट रिसोर्सेज टू सर्टेन वैल्यू चेन एनालिसिस टू बिल्ड competitive advantages। आज आप जो है वो नैरो मार्केट को टारगेट करें, लिमिटेड बायर्स है आपके पास, तो आप वैल्यू चेन एनालिसिस में नो एक्टिविटी जो आती है उसमें से किसी भी एक एक्टिविटी के ऊपर आप बढ़िया फोकस करके, बढ़िया उसमें अल्टर करके आप कंपेटिटिव एडवांटेजेस जो है वो हासिल कर सकते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस में दो एक्टिविटी मेन है, प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी जो है उसमें रहेगा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। सेकेंडरी एक्टिविटी में रहेगा फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एंड प्रोक्योरमेंट। तो अगर आप एक लिमिटेड बायर्स को टारगेट कर रहे हो, लिमिटेड ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो, तो वहां पे आप अपने वैल्यू चेन एनालिसिस में बढ़िया चेंजेस कर सकते हो एज पर द डिमांड, एज पर द एक्सपेक्टेशंस, एंड आप अपना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। Now risk will be there, risk will be always there। Firm may be out focused by competitors जो है वो आपको कहीं पे गिनती में ही नहीं लेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, बट एक्चुअली ये चीज दोनों साइड से है। कई बार ये आपके लिए अच्छी भी है, क्योंकि अगर आपको बड़े कंपटीटर्स इग्नोर कर रहे हैं इट मींस यू आर सेफ, यू आर प्लेइंग सेफ। बट एक बार अगर आप जो बड़े प्लेयर्स है उसके आसपास भी कहीं पे आ गए तो बड़े प्लेयर्स जो है वो आपको खा जाएंगे, या तो आपका मार्केट जो है वो उसमें एंट्री करें, तो वैसे वर्षा कुछ भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स कि आप कौन सी प्रोडक्ट में हो, आप कौन सी सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रहे हो। जैसे कि पेटीएम जब स्टार्ट हुआ था तो काफी छोटा था, फिर उसके बाद फ्री चार्ज आया, उसके बाद और भी 2-3 आए, मोबी क्विक, फोन पे, मोबी क्विक,
ये सब आए। अब उसमें सबसे बड़ा प्लेयर भी आ गया गूगल पे, गूगल पे भी मार्केट में आ गया। तो अगर आप ऐसे ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो जहां पे बिजनेस है, तो बड़ी कंपनी भी वहां पे आ जाएगी सूनर और लेटर, दैट विल बी थ्रेट फॉर यू। Then large competitor may set its sights on your niche market and preference of niche market may change to match those of core market. Now अभी कई बार क्या होता है कि धीरे धीरे आप अपने प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज करते जाते हैं। आज आपने नैरो मार्केट को टारगेट किया, आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, नाउ यू आर शिफ्टिंग योर टारगेट फ्रॉम जीरो टू द बॉर्डर, फ्रॉम क्लास टू द मास, जो एक्चुअली लॉन्ग टाइम के लिए देखें तो अच्छा नहीं है, बट डिपेंड्स ऑन कंपनी। बालाजी जो है उन्होंने सबसे पहले एक क्लास को ही टारगेट किया था, आज मास को टारगेट कर रही है। कई सारी ऐसी कंपनी है जिन्होंने पहले क्लास को टारगेट किया था, जब वो बढ़िया चलने लगा तो नाउ दे आर फोकसिंग ऑन मास। सो ऐसा भी हो सकता है, बट डिपेंड्स ऑन बिजनेस, डिपेंड्स ऑन द फाउंडिंग फिलोसॉफी कि भाई मेरे को मेरा बिजनेस किस हिसाब से चलाना है। मेरे को प्रॉफिट मेकिंग यूनिट करना है, या तो मेरे को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में ध्यान देना, या तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग लिखने के लिए लिखते हैं कि ग्राहक का संतोष वो ही हमारा मुद्रा लेखन, समथिंग लाइक दैट। तो ये लिखने के लिए भी सही है, बट हाउ मच एक्चुअली यू आर प्रोवाइडिंग, दैट मैटर्स अ लॉट। सो ये रिस्क जो है वो वहां पे हो सकते हैं। Now the last one, that is integrated. The last one is integrated. इंटीग्रेटेड मतलब एक कंपनी जो है वो दोनों जगह पर फोकस कर रही है। वो ऐसा ट्राई कर रही है कि मैं जो प्रोडक्ट मार्केट में लाऊं, मैं जो सर्विसेज मार्केट में लाऊं, वो भले ट्रूली डिफरेंशिएटेड ना हो, पर थोड़ा सा उसमें कुछ डिफरेंशिएशन हो कि जिसकी वजह से मुझे थोड़ा प्रीमियम प्राइसेस जो है वो मिल सके। कोई बेगला થઈ જાવ જોક સાંભળો ને તમારા રંજન માં પોકે so integrated strategy એક વખત એક રાજા એક રાજા હતા અને એઝ યુઝ્યુઅલ એ રાજાને બે સંતાન હતા। આપણે સંતાનની વાત કરશું, બાકીની બીજી વાત નહીં કરીએ। રાજાને રાણી હતી। એક વખત એક રાજા હતા અને એ રાજાને બે પુત્રો હતા, બે સન। એઝ યુઝ્યુઅલ એક નાનો હોય ને એક મોટો હોય, એમનો કે તક્ષર ટ્વિન્સ હોય તો એમાં 2-4 સેકન્ડનો ફેર હોય। એટલે એક નાનો હતો ને એક મોટો હતો છોકરો। મોટા થઈ ગયા બે, એટલે હવે રાજગાદી સોંપવી પડે, બટ ઓબ્વિયસ છે। તો કે કોને રાજગાદી સોંપવી, બાહુબલી જેવું તો કઈ કરાય નહીં। એટલે એને એક સાધુને બોલાવ્યા। સાધુએ કીધું કે આપણે એક રેસ રાખીએ, એમાં જે જીતે એને આપણે રાજ્ય આપી દઈશું। તો બરાબર, બે ભાઈ એગ્રી થઈ ગયા, રાજા રાણી પ્રજા બધા એગ્રી થઈ ગયા અને ટ્રેક નક્કી કર્યો કે ક્યાંથી ક્યાં જવાનું ને પાછું આવવાનું, એ ટ્રેક નક્કી કર્યો। પછી એમાં એક શરત રાખી, બેને ઘોડા આપી દીધા। મોટા ભાઈને બ્લેક હોર્સ આપ્યો અને નાના ભાઈને વ્હાઇટ હોર્સ આપ્યો। બંનેને એક એક ઘોડા છે એ આપી દીધા। એટલે શરત મૂકી કે જેનો ઘોડો છેલ્લે આવશે એને આપણે રાજા બનાવશું। જેનો ઘોડો છેલ્લે આવશે એને આપણે રાજા બનાવશું। તો બે ભાઈ, મોટા ભાઈ પાસે બ્લેક હોર્સ હતો, નાના ભાઈ પાસે વ્હાઇટ હોર્સ હતો। બે ધીમે 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 જતા હતા, સાવ ટવરક ટવરક એકદમ સ્લોલી જતા। અઠવાડિયું વહી ગયું, કોઈ પાછા આવ્યા નહીં, કારણ કે બે ધીમે ધીમે હાલે। પછી રસ્તામાં જંગલ હોય, એઝ યુઝ્યુઅલ જંગલમાં નદી હોય, નદીની બાજુમાં નાનકડી એક ઝૂંપડી હોય જે સાધુ મહારાજ રહેતા હોય।
આ લોકો અહીંયા ઘોડાને પાણી પીવા માટે થોડો આરામ કરવા માટે ઊભા રહ્યા અને પોતે થોડોક આરામ કર્યો, બે ચાર ફળ તોડીને ખાધા અને સાધુ મહારાજ આવ્યા તો પગે લાગ્યા. પછી કે તમે કેમ બે આટલું ધીમું ધીમું ચલાવો છો? તો સાધુ મહારાજે એને કાનમાં કંઈક કીધું. સાધુ મહારાજે કાનમાં ઈ રાજકુંવરને કંઈક કીધું. ઈ ખબર નથી. આલો વાંધો ને બેયને કીધું. આ કીધું બેયને કીધું. શું કીધું? એ કાંઈક સાંભળ્યા પછી બે રાજકુંવર ફૂલ સ્પીડમાં ઘોડા હલાવ્યા. તો એ સાધુઓ એવું શું સાધુને સાંભળ્યા પછી બે રાજકુંવર જે છે એ ફૂલ સ્પીડમાં ઘોડા દોડાવવા. સાધુએ એવું શું કીધું રાજાને, સોરી આ રાજકુંવરને? બે સ્પીડમાં ઘોડા હલાવવા. Yes, online students can also answer. Publicly બોલા એવું જ કીધું. એને કાનમાં નહોતું કીધું, બોલો પબ્લિકલી કીધું બસ. સાધુએ પબ્લિકલી કીધું. એ રાજકુંવરની મોઢે જોરથી બોલ્યું. એને તો કાનમાં કીધું. તમે કાનમાં કેવા માંડ્યા એટલે પછી મેં કીધું વાંધો ના, સાધુએ પબ્લિકલી કીધું બસ. પબ્લિક ને પૂછી લે એને શું કીધું હશે? આ બરાબર છે ના, એ જનરલી એક કોમન રીઝન એવું આવે છે ઘણા ટાઈમથી કે આ એના રેડ છે એ ઉકલી ગયા, રાજા છે એ ઉકલી ગયા. બટ એ ગલત જવાબ, સહી જવાબ નહીં, ગલત જવાબ. તો સાધુને ખબર હોય, મને થોડી ખબર. એ રાજકુંવરને ખબર હોય અને સાધુને ખબર હોય. એ શું કીધું? એને કાંઈક કીધું. आ गूगल में आंसर करना नहीं मिलेगा, गूगल में आंसर नहीं मिलेगा, खुद का गूगल इस्तेमाल करना पड़ेगा. चलो भाई, साधु ने क्या बोला? आप बताइए, गूगल में आंसर नहीं होगा इसका. घना व्हाट्सएप चालू है. गई काले શું હતું? તારા જેવા यस वैदिक point. Yes. શું તમારું ચાલુ છે માઇક? Yeah, done. Okay, so we'll move to the next, that is integrated strategy. જવાબ ને સાધુએ કઈ કીધું ને, મને થોડી ખબર. સાધુએ કીધું અને બે રાજકુંવરને કીધું. સાધુ જાણે અને રાજકુંવર.
थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर मिलेगा। आंसर जो है वो स्टोरी में ही है। स्टोरी को फिर से थोड़ा रिपीट कीजिए। આશા નથી જે વસ્તુ મળી જાય ને લોકોની કિંમત નથી ચલો ભાઈ now I need to complete this topic. So integrated strategy. કહો someone. So integrated strategy मतलब जहाँ पे फर्म जो है वो दोनों चीजों के ऊपर फोकस करती है। ट्रूली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी नहीं होगी और सबसे कम प्राइस में भी वो सेल नहीं करेगी। प्राइस जो है वो कम प्राइस से थोड़ा ज्यादा रहेगा। डिफरेंशिएशन जो है वो ट्रूली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट से थोड़ा कम रहेगा। So successful firms using this strategy will have above average return, means superior return they can gain if they are belonging to this integrated strategy where they are focusing on both the things, low cost as well as differentiation. प्राइस जो है वो लो कॉस्ट से थोड़ा ज्यादा होगा एंड प्रोडक्ट जो है वो ट्रूली डिफरेंशिएटेड नहीं होगी बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट डिफरेंशिएटेड होगी। Firm offers two types of value to the customers. The first one is efficiency, relatively low cost, but not as low as the cost leader price, and differentiation, like some differentiated features, but not truly differentiated. A firm that successfully uses an integrated cost leadership of differentiation strategy should be in a better position. Now, only 3 minutes. AC company. हाँ slide माटा 3 मिनट. AC company जो integrated strategy को follow करती है. Now suppose market में external environment में कोई change आए, लोगों का mood जो है, लोगों का perception जो, लोगों का जो trend है वो शिफ्ट हो गया ट्रूली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के प्रति, तो वहां पे वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो डिफरेंशिएशन में है। हाफ ऑफ द लेग इज देयर इन द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी बिकॉज दे आर देयर इन द इंटीग्रेटेड। नाउ मार्केट में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लोगों को लो कॉस्ट प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हाफ ऑफ द लेग जो रखा है, बाकी का 50% जो है वो लो कॉस्ट लीडरशिप में भी जा सकते हैं। तो मार्केट में कोई भी प्लस माइनस आएगा, कोई भी बड़ा वेरिएशन आएगा, तो ये फर्म जो है वो सभी चेंजेस जो है वो क्विकली अडॉप्ट कर पाएगा। सो अडॉप्ट क्विकली टू द एनवायरमेंटल चेंजेस एंड लर्न न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज मोर क्विकली, क्योंकि वो दोनों साइड पे, दोनों नाव में अपने पांव जमा के रखे कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो हम लो कॉस्ट में जंप कर लेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम डिफरेंशिएशन में भी जंप कर सकते हैं। लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजीज आएगी, लेटेस्ट जो भी स्किल्स आएंगे, उसको हम इजीली एडॉप्ट कर सकेंगे। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको एग्जाम में 70% आते हैं, सपोज आपको एग्जाम में 70% आते हैं एंड मार्केट सिचुएशन मतलब आपके घर की सिचुएशन ऐसी है कि इस बार अगर 90% नहीं आया तो घर में पाँव नहीं रखने दूंगा, या तो बुलेट ले दूंगा या तो रिक्शा ले दूंगा। बुलेट जो है वो घुमाने के लिए, रिक्शा जो है फेरा करने के लिए। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो 70% वाला बंदा जो है वो इजीली 90 पे आ सकता है, बट 50 वाला जो है वो 90 पे नहीं आ पाएगा। सो इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी मतलब एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसी सिचुएशन में है जहां पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो वो चेंज वो क्विकली एडॉप्ट कर पाएगा, वहां पे वो नई स्किल्स एंड टैलेंट को सीख पाएगा। Then effectively leverage its core competencies while competing against its rivals. The integrate form of the functional structure partially centralized and partially decentralized. दो चीजों के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, कॉस्ट के ऊपर ही फोकस कर रहे हो, डिफरेंशिएशन के ऊपर ही फोकस कर रहे हो।
सो कोस्ट के रिलेटेड जो भी इश्यू है, जो भी चीजें है, उसका डिसीजन जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मनी के रिलेटेड सभी डिसीजन वहां से लिए जाएंगे। एंड प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट के फीचर्स, फंक्शंस के बारे में जब बात हो रही है तो आर&डी वाले या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले खुद अपना डिसीजन जो है वो वहां पे ले लेंगे। दैट्स व्हाई partially centralized and partially decentralized, and we'll have semi specialized job, specialized job like blue collar job, white collar job, and all those things, and procedures. In certain cases you will find formal procedures, and in certain cases you will find informal procedures too, because company जो है वो low cost में भी focus कर रही है and differentiation में भी focus कर रही है। So कभी-कभी ये issue वहां पे आ सकते हैं। Now strategic flexibility is obtained via flexible manufacturing system। वहां पे आपको मास प्रोडक्शन तो करना नहीं है, बल्क प्रोडक्शन तो करना नहीं है, तो आप अपने खुद की फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो डेवलप कर सकते हो। आप खुद का इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है वो डेवलप कर सकते हो। इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हो तो लोग उसको परचेस करेंगे, उसके बाद उसका फीडबैक आएगा, बट फीडबैक जब फीड फॉरवर्ड होगा तभी उसकी इंपैक्ट जो है वो आएगी, अदरवाइज फीडबैक का कोई मतलब नहीं। आज किसी कस्टमर ने फीडबैक दे दिया, आपको 5 स्टार दे दिया, किसी एक ने आपको 1 स्टार दे दिया, तो उसकी जो फीडबैक है वो फीड फॉरवर्ड होनी चाहिए, टॉप मैनेजमेंट को देखनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली सर्टेन चेंजेस जो है वो वहां पे करने चाहिए। देन एंड देन इट्स फ्रूटफुल, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज। दैट्स व्हाई इंफॉर्मेशन नेटवर्क मैटर्स अ लॉट। एंड TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि आप रेगुलर जो प्राइस है, लो कॉस्ट है, उनसे ज्यादा आप चार्ज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे आपको क्वालिटी अच्छी ही देनी पड़ेगी। नाउ रिस्क सभी जगह पे होगा। इसमें कौन सा रिस्क है? ऑफन इन्वॉल्व कॉम्प्रोमाइज। या तो आपको लो कॉस्ट लीडरशिप में जाना है, या तो आपको डिफरेंशिएशन में जाना है, बट आप इंटीग्रेटेड में हो, मतलब यू आर देयर इन मिडल, यू स्टक इन मिडल। ना ही आप लो कॉस्ट में जा सकोगे, ना ही आप डिफरेंशिएशन में जा सकोगे, तो कोई भी एक चीज आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, लेट गो करनी पड़ेगी, तो आप बीच में स्टक हो। दैट्स व्हाई ऑफन इन्वॉल्व्स कॉम्प्रोमाइजेस। देन नाइदर द लोवेस्ट कॉस्ट नॉर द मोस्ट डिफरेंशिएटेड फॉर्म, कोई भी बेज आपको नहीं मिलेगा, लो कॉस्ट लीडरशिप भी आपको नहीं मिलेगी, एंड ट्रूली डिफरेंशिएटेड फॉर्म का बेच भी आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज समवेयर यू आर स्टक इन मिडल, यू आर फोकसिंग ऑन बोथ द थिंग्स। लो कॉस्ट के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, डिफरेंशिएशन के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर स्टक इन मिडल। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन इट, तो आप मार्केट में से किक आउट हो जाओ, एंड the firm may become stuck in the middle and lacking the strong commitment and expertise that accompanies firms following either a cost leadership or a differentiated strategy. Neither ही आप low cost leader बन पाओगे, nor आप differentiated firm बन पाओगे. You will be there in middle. जैसे कि अभी वाया का टिफिन आता है, if you guys are aware, वाया ये ना कंपनी, आपने हाँ बोला ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं। वाया का टिफिन आता है विथ कॉपर प्लेटेड, उसके जो भी बाउल से जो भी आते हैं वो कॉपर के आते हैं, दे आर चार्जिंग हाई। तो अभी ये फर्म जो है इनिशियली जब लॉन्च हुई थी तो 3000 का टिफिन बेच रही थी, पर फिर उसको लगा कि भाई ये कॉस्ट काफी ज्यादा है, तो उन्होंने कॉस्ट कम की और क्वालिटी के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, सो दैट they are stuck in middle now। ना ही वो truly differentiated product दे रहा है, ना ही low cost में दे रहा है, so ना ही उसके पास एक differentiation कंपनी का बेस होगा, ना ही उसके पास cost leadership का बेस होगा, वो कहीं बीच में अटक जाएंगे। so ये सबसे बड़ा disadvantage है integrated strategy का। so that's all about the business main 5 types: cost leadership, differentiation, cost focus, business level strategy of your third module. Now we'll move to the next topic in the next lecture that will be there on Monday. I request all of you to go through with module 1 and module 2 slides
named SM1 and SM2 PPT. Refer to that. If you have any doubts, any queries, please note it down, share it with me, and later on in the next session, we'll sort out all your queries. So today we'll keep up to this only. That's it for the day. Thank you so much, guys. Enjoy your weekend. Take care. Thank you.